मैंने जहर का टीका लगा दे, मैं मर जाऊंगा। नहीं ऐसा अल्लाह ताला तो जिंदगी दे। जिंदगी है आज जिंदगी अल्लाह ताला तो इंसाफ होता देखो। अल्लाह रखा माजी। नहीं अल्लाह मैं मर जाऊंगा पेट पे। अल्लाह रखा माजी। फिर आया ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਾੜੇ ਐਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਇਨਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। लरजते हाथों के साथ जवान बेटे की लाश को कंधा देने वाला बूढ़ा बाप और बेटे के खून आलू चेहरे पर आखिरी बोसा देने वाली माँ का दुख दिल दहला देने वाला है। उनकी आंखों में बेटे का चेहरा है और खून के आंसू हैं। उन्हें बेटे की अजियतनाक मौत का दुख तो है ही, दिल में सफाक औरत और उसके आशनाओं को कानून के आहनी शिकंजे में जकड़ा देखने की ख्वाहिश भी है। वो तड़प तड़प कर इंसाफ के ईवानों को पुकार रहे हैं कि उनके मजलूम बेटे को इंसाफ दिया जाए। बाजी ये दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਸੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸਊਦੀਆ? 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਨਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੱਦੇ ਹਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਅੰਮੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਢਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਚੌਲ ਪਕਾਏ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਆਹੋ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਚੌਲ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਜੇ ਪਕਾਉਣੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਨੀਰ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਕਾਉਣੇ। ਚੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਧੇ ਸੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮਿਲਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਯਾਸੀਨ ਪਾਣੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ? ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਣੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੁੱਫੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਵਾਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਦੀ ਰੋਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਵੇਦ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਟਦੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 5 ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਇਹਨੇ ਫੈਲ ਕੱਢੇ ਤੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ? ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। 5 ਫੈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਬੱਕਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਖਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਬੱਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹਲਾਲ ਕਰੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ की जुल्म तेन की दसी है, की जुल्म उन्होंने नहीं किया। माँ जी बता रही उसके दांत टूटे हुए थे, उसकी बाजू जो है वो बाजुओं पर छुरियों के निशान थे, लहूलुहान उसको किया गया था, काटा गया था और उसको तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। मेरे पुता दी अखां को नहीं सनी, अखां भी नहीं सना, एडे ने मोटियां मेरे पुता दी अखां बाहर कर दी उन्हें अखां, दोवें अखां लुचड़ गई जो के ना सन। मेरे पुता दी एडी मोटियां के तेरे तरह मेरे पुता दे लाल। सफाक और संग दिल बीवी मुबैना तौर पर खून की होली खेलने के बाद शोहर की लाश के सामने आशना के साथ हवस और दरिंदगी का शैतानी खेल खेलती रही। कमरे में हाथ पांव बंधी लाश थी जिसे गोलियां मारकर मौत की नींद सुलाया गया था। डकैती का ड्रामा रचाने के लिए घर में सामान बिखरा था। जैसे ही मकतूल का भाई पहुंचा, मुकार औरत आहो पकार और बैन करने लगी। मकतूल के मामू ने जाए वुकुआ पर क्या खौफनाक मंजर देखा। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस कमरे में जहां पर मुबैना तौर पर बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये वो क्राइम सीन है, ये वो जगह है जहां पर ये मामलात हैं। चचा जो हैं मकतूल के, उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। ये दसो जी, ये उसे मकतूल जवेद ही कमरा में? हाँ जी, उनका कमरा जी। अच्छा, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਜਵੇਦ। ठीक है ठीक है, चढ़ दो। ਬੀਬੀ ਇਹਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ऐसे कमरे च? ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਾਡੀ ਐਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। अखा इंसान? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर इसी बेड पे ये चचा जो बता रहे हैं, उसको मकतूल को लटाया गया, उसको हो सकता है बेहोश किया गया हो या वो नींद में हो, उसको बांध दिया गया था। मुबैना तौर पर उस पर तशद्दुद करते रही उसकी बीवी भी और उसके साथ मुबैना तौर पर जो उसके आशना थे वो भी। और फिर जब फायरिंग की गई तो एक गोली यहाँ पर भी लगी, उसको मार्क भी किया गया है। अच्छा, फिर बहाना की लाया, सलवार लाई है, पुलिस वाले आके पवाई है। मेरी इज्जत लुटते रहे ने। यानी कि राती वाकया हो गया, मार देता तो सुबह का इंतजार करती रही है। उस टाइम फौरन 15 किसी जगह किसी ने इतला नहीं की थी, ना किसी ने इतला दी थी, ना हाल, ना बूबू, ना लैनी, ना देनी। ये अमना मान अरमान नाल बैठी रही है। बंदा कोल जड़ा वो अपना सहकदा पिया, कदी कदी साह लैन दिया है। फिर इस कतल दा नहीं पता लगदा पिया। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, 3 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ नहीं सम कह सकते। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ आशिका आर साथ के जवेद को कत्ल करवाया। उसकी बीवी ने ये नहीं कहा कि मुबैना तौर पर उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामन को मारा? साबित नहीं बात अभी हुई। क्या ये साबित हो गया कि जावेद जो मकतूल है उसके गलत ताल्लुकात थे? नहीं, ये भी नहीं साबित हुई। कह रहे हैं पहले आप बंद करें, पहले आप मुझे बताएं। कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा रोल पे रहेगा। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है इस केस के तफ्तीशी अफसर बशीर अहमद साहब के पास, और उनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से मुबैना तौर पर
उस शख्स को कत्ल किया गया। जी बशीर साहब बताइएगा, क्या इतला मिलती है और जब आप क्राइम सीन पर पहुंचते हैं वहाँ पर क्या हालात है? ये मुकदमा की इतला पाकर हमें मौके पर पहुँचे तो एक बंदा जावेद नामी जो फायर लगने से मजरूब था और ज़िंदगी मौत की कशिश था, उसको अस्पताल पहुँचाया जो एक्सपायर हो गया, फौत हो गया। तो तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश में जो उसकी बीवी थी उसका पता किया, उससे बयान लिया। वो कहती थी कि जो मेरे किराएदार थे अली इब्रार, उसका भाई था, उसकी वालदा थी, उसकी बहनें थी, वो हमारे ऊपर वाले घर में किराए पे रहते थे। तो शक व शुबात पैदा हुए कि जो मेरा खामद मकतूल है इसने अली इब्रार की बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात कायम कर लिए। अब उनको शक था कि ये मेरी बीवी को उससे मुझसे तलाक दिलवा कर ख़ुद शादी कर लेगा। ये मामला चलते रहे। इसी दौरान जावेद का अपनी बीवी के साथ भी रवैया ठीक ना रहा। नहीं, आप मेरी एक थोड़ी सी बात बताइएगा, कत्ल कौन हुआ? जावेद। इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं आप? अली अबरार। नहीं, आप तो ये बता रहे हैं ना कि मुलजमा ने ये बोला कि जी मेरे शोहर के उसकी बीवी के साथ गलत तल्लुकात है, ऐसे बोला आपने? उसकी बीवी कह रही है ना। उसकी बीवी कह रही है ना? उसकी बीवी। तो आप मनोन उसकी बात क्यों मान रहे हैं? किसकी? उसकी बीवी। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कह रही है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, जब आप क्राइम सीन पर पहुंचे तो जी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप कह रहे हैं जी कि वहां पर पहुंचे, मामलात थे, फिर उस बीवी ने खुद ही बता दिए। पहले दिन बीवी ने ये इकरार नहीं किया कि उसने कत्ल करवाया अपने शोहर को? नहीं इकरार किया उसने? नहीं। अच्छा, ये अली किराएदार जो था ये किसने रखा था? जावेद ने। जावेद तो इधर था ही नहीं, वो तो होता ही सो दिया था। नहीं, वो तो 2 साल से वापस आ गया। 2 साल से आया ना, 2 साल से यहाँ पर आया ना। तो अली कौन है? अली इब्रार किराएदार था। नहीं, किराएदार जो है वो कौन है? उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है? उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो क्रिमिनल है। नहीं, मेरी बात सुने ना आप। अरे तो अब तफ्तीश में ऐसी बातें आप कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आप एक ऐसा बंदा जिसको FIR में नामजद किया उसकी फैमिली ने, आप उसी की ही वकालत कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उसकी गलत नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि जो शवाहिद सामने आए हैं, जो हमारे शवाहिद नहीं, शवाहिद तो आप कह रहे हैं बीवी ने बयान दिया। ये उसकी बीवी ने बयान दिया। वो आप मुझे मनोन बता रहे हैं ना, उसकी बीवी ने ये नहीं कहा कि मुबैना तौर पर उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामन को मारा? नहीं, ये तो नहीं बात सामने अभी। हाँ? अभी तो ये नहीं, ये साबित नहीं बात अभी हुई। नहीं, आप कह रहे हैं अभी वो साबित नहीं हुआ। अभी तो तक क्या ये साबित हो गया कि जावेद जो मकतूल है उसके गलत ताल्लुकात थे? नहीं, ये भी नहीं तो फिर साबित आप हुई। क्यों कह रहे हैं? ये तो बातें सुनने में आ रही हैं ना, जो सुनने जो में आम और साबित बातें। देखिए, आप तफ्तीशी अफसर हैं। हाँ। सुनने में और साबित होने में पहले फर्क आप है। बंद करें, पहले आप मुझे बताएं। आप कैमरा नहीं मुझसे- बंद होगा, कैमरा रोल पे रहेगा। नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं मुझसे? आपसे तफ्तीश की बात मैं करना कह चाह रहा रहे हूँ हैं। कि मुकदमे की तफ्तीश जारी है। अभी जो मेन मुलजमान हैं वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। शोहर अपनी बीवी के नाजायज ताल्लुकात और गंदी हरकतों से तंग था, मगर वो सफाक और जालिम बीवी बिला खौफ मुबैना तौर पर हवस और गुनाह की कालक अपने मुंह पर मलती रही। शोहर उसे मना करता तो हतकमेज रवैये से उसे खामोश करवा देती। आशना की मदद से शोहर को मुबैना तौर पर कत्ल करने से पहले सफाक बीवी अपने शोहर को जान से मारने की धमकियां दे चुकी थी। उससे पहले कि उससे जान छुड़वाता, उसने अपने शोहर को मुबैना तौर पर रास्ते से हटा दिया। मकतूल की ममानी भी इंसाफ की दुहाई देती दिखाई देती है। बात करते हैं मकतूल की ममानी से। इस औरत के बारे में जानते हैं, ये कितनी खौफनाक थी, कितनी खतरनाक थी और किस तरीके से इसने अपने शोहर को पहले इस्तेमाल किया, पैसा खाया और फिर उसको मरवा दिया। माँ जी ये दसो, ए जड़ी बीबी जिन्हें अपने शोहर ਨੂੰ कत्ल करवाता मुबैना तौर ਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਬਾतें ਕਰਦੀ रहती ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਰਾਤ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਕ रहते सन, फिर भी ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, 3 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੇਰੀ
ਅਸੀਂ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਸਾਧ ਕੇ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। अभी हमारे साथ मौजूद है जी। जब शोहर अपने घर के लिए निकलता है तो उससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, और ये वो दोस्त हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कॉल आई, किस तरह शोहर को बुलाया गया और क्या आगे के मामला थे। आप दोस्त हैं जी मकतूल के? अच्छा, तो जिस दिन वो कत्ल हुआ है उस दिन क्या मामला थे, वो कहाँ पर बैठा हुआ था पहले? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਡੇਰੇ ਤੇ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਨੇ, 버ਗਰ ਤੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हम्म। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 버ਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, कौन? ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਕ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ, ਜਵੇਦ ਦੀ, ਮਰੀਮ ਦਾ ठीक। ਆਸ਼ਕ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਕਿਹਨੂੰ? ਹੈ, ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ? ਜਵੇਦ ਨੂੰ। अच्छा। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਸੱਤਦਾ ਸਾਥੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੀ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਫਰੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਵੇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਜਵੇਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਪਿਛਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਤਲ ਬੀਵੀ? ਕਾਤਲ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੋ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ कि एक ना डाकुओं ने किया है। बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया, और उसके बाद मुबैना तौर पर उसी आशना के साथ जब अपने शोहर को मार चुकी थी, उसी घर में गलत मामलात भी अपने जो हैं वो उसके साथ इस्तेमाल करती रही, और उसके बाद फिर ड्रामा रचा दिया डकैती का कि जी कोई आया और उसको मार कर चला गया, और मुबैना तौर पर उसके साथ भी जुल्म कर गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई, मकतूल के भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या मामला थे, ये जानते हैं इनसे। अच्छा, ये दसो जनाब कि भाई नूं पता भी लग गया कि गलत मामलात ने, वो किस तरह पता लगा भाई नूं? ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ? ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨੇ ਤਲਾਕ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਮੁਕਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 7 ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। 3 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਨਾਈ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚਾਚੇ ਨੇਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। बीवी भी अंदर ही है? बीवी भी अंदर है, बीवी भी अंदर है, 2 बंदे भी अंदर ने। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਚਾ ਨੇਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸਨ। 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ, ਦਸਤੀ ਉਹ ਚਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ सारा किस तरह पता लगा कि पहले तो फिर उस बाद डकैती दा ने क्या डकैती हुई मेरे नाल डकैती ਦਾ किस तरह पता लगा कातिल बीवी ਕਾਤਲ ਬੀਵੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੋ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਪਿਛਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ कत्ल करवा के ते फिर गलत भी करवांदी रही गलत करवांदी रही है, अपने आप ਨਾਲ गलत करवांदी गलत करवाया, सबूत करवाया कि मेरे ਨਾਲ गलत करके गए ने, सिर्फ प्यार ਨਾਲ गलत करके गए ने, आख्या कुछ नहीं ना, इनू मारिया है, सिर्फ जवेद ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੰਦ ਨਿਕਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਉ ਬਾਨੇ, ਹੱਥ ਬਾਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। एफआईआर में कौन कौन नामजद है? अली नामजद है, और उसकी बीवी नामजद उसकी नहीं है? बीवी नामजद, जवेद की बीवी नामजद है, मरियम जो मकतूल है उसकी बीवी नामजद है। ठीक है। अभी तफ्तीश कर रहे हैं, जब मुलज़म पकड़े जाएंगे बात सामने आएगी, सारे हालात सामने आएंगे, फिर देखेंगे कि गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है। हम तो कह नहीं रहे कि गुनाहगार बेगुनाह कौन है। अभी आपने मरे हुए को गुनाहगार कर दिया। नहीं, मैं नहीं कर रहा, आपने खुद बताया। मैं ये नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इब्तदाई हालात सामने की वालदा है ना जी, उसने रो के ना हाँ मरीम नवाज साहब आगे और राजी साहब आगे और उनके आगे डीपीओ साहब के आगे गुजारिशें की हैं। जी। जिसका जवान बेटा, क्या उसकी बॉडी की क्या हालत थी जब आप गए? उसको फायर लगे थे। सिर्फ फायर थे? जी फायर थे। चेहरे के क्या हालात थे उसके? चेहरे पे खून था। आंखें कैसी थी उसकी? जी, आंखों के क्या हालात? एक आंख में फायर लगा था। फायर लगा हुआ जी था? फायर लगा था। अच्छा, उस वक्त घर में कौन था मौजूद जब ये हुआ मामला? कौन था? घर में कौन था जब ये वारदात हुई है? उसकी बीवी थी। और कोई नहीं था? नहीं। ठीक है। फिर बीवी ने क्या बताया कि कौन मार गया? बीवी तो कहती है अली है जो मेरा किरायादार नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये गलत, ये आप बात इस तरह से ना कि अली किराएदार का तो बाद में बात सामने आई, पहले तो उसने डकैती का ड्रामा रचाया। किसने? बीवी ने। हाँ, पहले उसने डकैती का ड्रामा रचाया, मगर हमारे अफसरान मौके पे गए हैं, मैं वही तो बता रहा हूं, वो बताए ना। जी जी, वो पहले उसने स्टार्ट किया। बशीर साहब, मैंने स्टार्ट की है बात कि जी हुआ क्या, आपने अगली बात सुनानी शुरू कर दी। जो बीवी ने ड्रामा किया वो नहीं बता रहे, वो छुपा क्यों रहे हैं? मैं नहीं छुपा रहा। मैं आपने बताया नहीं। मैं नहीं छुपा। मैंने बताया। मैं कहता हूँ जो कॉल हुई उसने यही कॉल दी कि ये जो हमारे वकूआ हुआ है। सर, अली का आप बंदे का नाम आप ले रहे हैं, जी, वो जी। बात पहले उसने ये नहीं कहा कि ड्रामा डकैती हुई है मेरे साथ। किसने? उस औरत ने कहा है। कहा है ना। कहा। क्या कहा वो बात बताए ना जब आप गए हैं। जब हम गए हैं उसके घर में, उसने ये जो घर का सामान था वो बिखेरा हुआ था। अब उसने कहा कि मेरे साथ डकैती हो गई है। अपने उसने इवन के यहाँ तक पता लगा शलवार तक नहीं उसने पहनी हुई थी। नहीं, शलवार पहनी हुई थी, शलवार पहनी हुई थी, लेकिन उसने कहा मेरे साथ जाती हुई है। हाँ ये भी उसने कहा था, मगर डकैत आए क्या करके मगर गए उसके साथ? उसने अपना बयान एक मेरी बात तो सुनिए, ये पूरा बात तो पूरा जी कर जी देना। बताएं। ये बात पूरी कर जी देना। बताएं बताएं। उसने बताएं। जाते ही पहले बयान तो ये दिया ना, घर में डकैती होगी। जी हो गई। मेरे उसने शोर कहा- गोली मार के और मेरे साथ मुबैना तौर पर ज्यादती कर ज्यादती कर गए। ये बात कही उसने? ये उसने बात कही पहले। कही है ना? पहले तो कही। ये क्यों नहीं बता रहे आप? पहले कही उसने, मगर उसमें जब इंटेरोगेट किया, उससे बातचीत सारी पता की, तो ये बात साबित ना हुई क्या कि मेरे साथ ये घर में वारदात हुई है, ये रेप हुआ है, ये साबित नहीं हुई। ये झूठ बोल रही थी। ये झूठ बोल रही कौन थी। बोल रहा था? उसकी बीवी मरियम बोल बताएं रही फिर थी। आप। तो ये बता रहा हूँ ना। अब बता रहे हैं आप।
आपने तो आते इल्जाम लगा दिया मकतूल पे। नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप या तो मैं कैसा कुछ नहीं या कर रहा आप सर, मैं मेरी- तो पूरा आप रिकॉर्ड कर मुझे दिया। मुश्तबा ना समझे, आप मुझे मैं समझ नहीं रहा, मैं ना कह रहा हूँ आपकी बातें मुश्तबा है। नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, जी जी। आप ऐसा ना करें, या तो मेरी बात सुने या आप ऐसे बुछाड़ ना करें। उसके बाजू पे कट लगे हुए थे? किसके बाजू पे? कोई मकतूल की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कट नहीं आया, फायर ही आया। आपने अपनी रिपोर्ट को छोड़े, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? उसको फायर लगे थे, कितनी गोलियां लगी थी उसको? उसके जो में से 5 फायर लगे थे और डॉक्टरों ने भी उनको फायर ही डिक्लेयर किया है। अच्छा। उसकी काज ऑफ डेथ को भी फायर ही डिक्लेयर किया है। दीगर सूरत ऐसी कोई इंजरी डॉक्टरों ने डिक्लेयर नहीं की। जो उसकी बॉडी पे निशानात थे जख्मों के, वो फायर आर्म में लिखे उन्होंने और फायर आर्म है। अच्छा, फिर आपने उससे तफ्तीश की औरत से? औरत से पूछगिछ की, डिप्टी साहब ने की। उसने कहा हाँ वो मेरा किराएदार था, हमारे घर रहता था। वो कहता था कि मेरी बीवी के साथ तरकात हैं, नहीं, वो मैं उसको वो- मार देना वो है। कहता है। वो बीवी नहीं, कहती वो है, उसकी कहानी- मरियम कह रही है ना, वो कह रही है ना, मेरी बात। मरियम मेरे फिर भाई आप कह विक्टिम रही है। ब्लेमिंग कर रहे हैं, जो बंदा मर गया बेचारा, जी। उसको बदनाम कर रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं? नहीं, मैं कैसे कर आप रहा? कह रहे, अब देखिए आप, अब अच्छा उस औरत या ने तो मैं ठहरे, उसने- मेरी उस पहले औरत बात ने झूठ सुनो। बोला। मेरी बात सुनो ना, उस औरत ने झूठ बोला। नहीं, आप या तो आप उठ के जाएंगे तो आप एज इट इज आपके पीछे पीछे कैमरा जाएगा। कोई बात हाँ नहीं, जी। मुझे कोई इतराज जी, भी नहीं जी, है। जी। मैं कह रहा हूँ आप मेरी आप चंद सवालों के जवाब दे दें। आप टू दी पॉइंट मेरी बात सुन लें या आप अपनी बात कर लें। मैं करता हूँ ना, आप मैं मेरे ये जवाब नहीं दे देना। कहता, या आप मुझे सवाल करें मैं जवाब देता जाऊंगा, बिल्कुल। या मेरी बात सुनते जाए मैं आप रिकॉर्ड करते जाए। बिल्कुल से। मैं एक सवाल। जी, पहले आप गए, उसने कहा जी डकैती हुई है, मेरे साथ जबरदस्ती किसी ने की। जी। ये बात हुई? जी, ये बात उसने बात कही? कही। उसके बाद फिर जब घर वाले आए, उन्होंने कहा जी कि नहीं ये मामलात नहीं है, ये भी शामिल हो सकती है, इससे पता करें। हाँ, आप लोगों ने पता किया? फिर उसने असल बात बताई जी कि अली जो है हाँ। वो आया था, वो मार गया। वो उसके लड़के वो थे, लड़की उसके ने साथ- कहा। जी आपने ये नहीं उसको बोला, इतने आप एक्सपीरियंस तफ्तीशी अफसर जी। हैं कि तू झूठ क्यों बोला है साढ़े नाल? जी, क्या है? फिर क्यों? तुम झूठ क्यों वो- बोल रही वो हो? दी- तुमने पहले नाम क्यों नहीं अगर- दिया? तुमने डकैती का रंग क्यों रचाया? अभी किधर है वो लड़की? जी, वो कहाँ पे है अभी? कौन लड़की? ये जिस पे वो जो लड़की नामजद है वो कत्ल भी के परसों केस में। पेश है। कत्ल की मुलजिम है ना? जी, तो कत्ल उसका की क्या कानूनी तौर पर क्या है कि एक कत्ल की मुलजिमा की इंटेरोगेशन अगर हो रही है तो उसको कहाँ रखना चाहिए, किधर होना चाहिए, उसको पुलिस की हिरासत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आपका मामला आता है इस पे अभी ये उसको बताइए। जब हम कर रहे हैं, अभी वो परसों पेश है, हम उसको भी ढूंढ रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। किसको ढूंढ रहे हैं? मरियम को भी ढूंढ रहे हैं, वो अब- मुसलमान को भी ढूंढ रहे हैं, सबको ढूंढ रहे हैं। वो आपसे वो मरियम को गिरफ्तार नहीं किया आप नहीं, लोगों ने? गिरफ्तार उस वक्त नहीं किया था। उस वक्त नहीं किया, तो नहीं उसके बाद किया। किधर है अब वो? अब उसके बाद परसों पेश है, अभी मतलब कि वो गायब है। गायब है अभी। क्राइम सीन पे जब बंदा कत्ल हुआ जी। था, सबसे वाहिद बंदा कौन था? वो औरत थी, जी उसकी बीवी। जी दूसरे नंबर पे उसने आप लोगों से झूठ बोला कि जो डकैती हुई है। जी। इधर से शक पड़ता है जी कि डकैती वाला मामला ये इसने करने की कोशिश की। जी। तीसरे नंबर पे जब मकतूल के लवाहिकीन है, उन्होंने बताया जी कि इसके गलत मामला आता है। जी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद फिर जब उसके बावजूद उसको आप वो पसपेश होगी? उस वक्त कोई ऐसे शवाद नहीं थे। उस वक्त तो सिर्फ ये था कि ये जो मौकूआ है इसको हैंडल करना है, उसके बाद देखेंगे। क्या हैंडल किया आपने? अभी कर रहे हैं। कितने दिन गुजर गए हैं? जी, कितने दिन गुजरे हैं? तफ्तीश हो रही है। मैं अभी भी वहीं से आया हूँ, बंदों को हम सीढ़ियाँ आपसे ली हैं। गुजारिश करें? जी करें। आपको क्या लगता है कि इस औरत ने, इसका कोई बीच में हाथ नहीं है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो यही है कि मुल्ज़म असल गिरफ्तार हो जाएगा। ये मुल्ज़म असल मुल्ज़िम तो ये मुल्ज़िमा नहीं जो झूठ बोल रही है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आप मेरा जवाब दे दें। अभी मैं यही आप कह रहा हूं कि माशाल्लाह मैं- अक्लमंद हैं। मेरी बात सुनो। जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद आप थी, मेरी बात- जिसके होते हुए आप- कत्ल हुआ, आप मेरी बात जिसके सुनो। साथ रेप आप हुआ, मेरी बात बकौल सुनो। उसके वो जिसने डकैती का रंग रचाया, जी। उसको आपने खुला छोड़ दिया। नहीं, खुला नहीं छोड़ा। हम वो काबू ही नहीं आ रही आपके। आ जाएगी इंशाल्लाह। कितने दिन हो गए इस इंशाल्लाह कत्ल को? 8-10 दिन हो ही गए हैं। तो आपको तो उसी वक्त उसको, जब उसको आपने मौके से देखा था, उसी वक्त उसको उस- आप उस हिरासत में वक्त- रखे? उस जो एसओपी थी, यानी अभी तक आपको कोई हकायक नहीं पता लगे? कितने दिन गुजर गए? अभी हम उनके सीडीआर निकलवाने में कितना टाइम लग जाता? जी CDR निकलवा लिए हैं। उसके किसी की कॉल नहीं आई बीच में? अभी उसमें जो मुल्ज़िमा- जो उस औरत की उसके कुछ- साथ रब्ता नहीं बीच में आया? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं आया, फिर कब आएगा?
देख रहे हैं ना, आईटी पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास इतना नहीं है, व्हाट्सएप पे फ़ोन चलते हैं, नेट पे चलते हैं, ज़्यादा बातें व्हाट्सएप पे होती आप हैं। तो खुद कह रहे हैं सीडीआर निकलवाइए। सीडीआर तो वो लिखवाई हैं जो जिन पर शक था, जो नंबर मेरे सामने आए हैं। इस औरत की और उस बंदे की सीडीआर निकलवाई है आपने? जी सीडीआर निकलवाई है उसकी। उसमें तो डाटा आ गया सारा। जी अभी उसमें डाटा उसका नहीं है। उसके जो उसका नंबर चलता था वो भी सऊदीया वाला नंबर था, उसमें सेम नहीं थी। इसके कुछ मुबैना तौर पर नाजिबा वीडियोस भी, कोई ऐसा कार्ड वगैरह भी इसका सामने आया इस औरत की? नहीं कोई नहीं, आप तक नहीं पहुंची? नहीं कोई ऐसा नहीं, मेरे पास नहीं आया। ठीक, कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं अभी तक आई। जो बातें मेरे पास आई हैं मैं उन पे बिल्कुल उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, मुलजमान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਰ ਮਾਰੀ ਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਂਦੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਟੂੰਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚਾਰ ਤੇ ਫੇਰੇ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਉਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਸੀਆਂ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਚਾਟ ਮਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਚਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ। हम यही चाहते हैं कि केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस जालिम बीवी को जिसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को मुबैना तौर पर मार डाला है उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।